ارحان گول کی جانب سے ریفریشمنٹ کا نظم کیا گیا ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب تک پروگرام جاری ہو رہا ہے آپ ریفریشمنٹ لے لیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم پروگرام جاری کر سکیں۔ جو ہال ہے وہ تقریباً پر ہو چکا ہے۔ ہمارے معزز مہمانان بھی کافی دیر سے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور آپ حاضرین تک اور معزز مہمانان تک ریفریشمنٹ بھی پہنچا دیا گیا۔ الحمدللہ وہ کام بھی جاری ہے۔ آئیے ہم اسی درمیان میں ہماری کچھ معزز خواتین بھی ہماری اسٹیج کی رونق کو دوبالا کر رہی ہیں۔ ہم آئے ہوئے تمام ہی معزز مہمانان کا، حاضرین کا ایک مرتبہ پھر پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا۔ آئیے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میری زمین کا میرے آسماں کا مالک تو، میری زمین کا میرے آسماں کا مالک تو، میری حیات کے سود و زیاں کا مالک تو، میری حیات کے سود و زیاں کا مالک تو، ہر ایک راہ تیرے ہی یقین سے روشن، ہر ایک راہ تیرے ہی یقین سے روشن، میرے خیال کا وہم و گما کا مالک تو، تیرے ہی فضل سے ہر لفظ ہے میرا روشن، تیرے ہی فضل سے ہر لفظ ہے میرا روشن، میرے قلم میری فکر و بیاں کا مالک تو، جو تو نہ چاہے تو میں سانس بھی نہیں لے سکتا، جو تو نہ چاہے تو میں سانس بھی نہیں لے سکتا، میری حیات کا اور میری جاں کا مالک تو۔ آئیے اسی رب ذوالجلال رب العالمین کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم تلاوت کلام الہی کے ساتھ یہاں پر آج کی اس پروقار تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ارحان گولڈ کے روح رواں محترم مسٹر رضوان صاحب اور مسٹر انیس صاحب نے یہاں پر بہت ہی اچھا انتظام کیا ہے اور آج یہاں پر 16ویں سال مکمل کرنے کی اس خوشی و مسرت کے موقع پر یہاں پر حاضرین کا ایک جمع غفیر موجود ہے۔ آئیے میں تلاوت کلام الہی سے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام الہی کے بعد آئیے، جیسا کہ ہماری اپنی ایسن روایت رہی ہے کہ
جہاں ہم ہمارے کسی بھی پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں، وہیں پر ہم رب العالمین کی بارگاہ میں حمد و ثنا کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ آئیے حمد پاک کا نذرانہ لے کر آ رہی ہیں عنایہ انم، جو کہ جماعت ہشتم کی طالبہ ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کی
سبحان اللہ انتہائی خوش لہانی کے ساتھ یہاں پر حمد کا نذرانہ پیش کر رہی تھی عنایہ۔ آئیے، جیسا کہ ہماری اپنی ایسا روایت رہی ہے کہ حمد و ثنا کے بعد ہم نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کوئی نعت مصطفیٰ لکھوں، میں چاہتا ہوں کوئی نعت مصطفیٰ لکھوں، چھڑی ہے ذہن و قلم میں کہ کیسے کیا لکھوں۔ وہ مصطفیٰ جنہیں محبوب کبریا کہیے، وہ مصطفیٰ جنہیں سردار انبیاء کہیے، وہ مصطفیٰ جنہیں چشم جہاں نما کہیے، وہ مصطفیٰ جنہیں سرچشم عطا کہیے۔ میں چاہتا ہوں کوئی نعت مصطفیٰ لکھوں، چھڑی ہے ذہن و قلم میں کہ کیسے کیا لکھوں۔ آئیے ہمارے اسٹیج پر موجود محترمہ ذکیہ میڈم صاحبہ، جو کہ بہت ہی اچھی طرح سے نعت نبی گنگنایا کرتی ہیں، یہ ایک بہترین موقع میسر آیا کہ ارحان گولڈ کے 16ویں جشن پر ہم انہیں یہاں پر سن سکیں گے۔ میں محترمہ ذکیہ میڈم سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت نبی پیش کر کے اس پروقار تقریب کی رونق کو مزید دوبالا کریں۔ ماہتاب کوئی کہ رش کے صدر، ماہتاب کوئی کہ رش کے صدر، آفتاب کوئی نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی، نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی۔ سفر ستاروں کا کرنے والے، سکون کی خاطر بھٹک رہے ہیں، سفر ستاروں کا کرنے والے، سکون کی خاطر بھٹک رہے ہیں، سکون کی خاطر بھٹک رہے ہیں۔ تو ان کی سب کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا نصاب کوئی، نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی۔ جو گالیاں سن کے دی دعائیں تو دشمن جاں کو دی پناہ، جو گالیاں سن کے دی دعائیں تو دشمن جاں کو دی پناہ، تو دشمن جاں کو دی پناہ۔ قسم خدا کی نہیں نہیں ان کی رحمتوں کا حساب کوئی، قسم خدا کی نہیں نہیں ان کی رحمتوں کا حساب کوئی، نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی۔ ہے خار بطحا کا وہ تصور کہ میری سانسیں مہک رہی ہیں، ہے خار بطحا کا وہ تصور کہ میری
रश के जन्नत गुलाब कोई न ला सका है न ला सकेगा मेरे नबी का जवाब कोई। शफीअ महशर ये इल्तिजा है कि आप साले की लाज रखना। शफीअ महशर ये इल्तिजा है कि आप साले की लाज रखना, कि आप साले की लाज रखना। गुनाह अगर पेश होंगे जिस दिन न बन पड़ेगा जवाब कोई। हो गैरते माहताब कोई कि रश के सद आफताब कोई न ला सका है न ला सकेगा मेरे नबी का जवाब कोई। न ला सका है न ला सकेगा मेरे नबी का जवाब कोई। बहुत ही अच्छे अंदाज से यहाँ पर ज़किया मैडम ने नात नबी पेश की। आइए हमारे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन में भी कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो यहाँ पर नात का नजराना पेश करने के लिए अपने आप का नाम यहाँ पर पेश किया है। मैं इमरान भाई से गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम माइक पे तशरीफ़ लाएँ और नात नबी पेश करें। कोई सानी कोई भी हमसर हुआ नहीं है। हबीब दावत का कोई सानी कोई भी हमसर हुआ नहीं है। हबीब रसूल पहनता मगर कोई आप सा नहीं है। बड़े बड़े सूर माजियाले अरब में थे आन बान वाले।
नहीं है। किसी ने राहों में खार डाले, किसी ने गर्दो गुबार डाले, किसी ने राहों में खार डाले, किसी ने गर्दो गुबार डाले, किसी ने गर्दो गुबार डाले। कदम कदम पर चुभन है फिर भी, कदम कदम पर चुभन है फिर भी, किसी से कोई गिला नहीं है सब नबी और रसूल बरहक, मगर कोई आप सा नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये अरहान गोल्ड के जो बिरादरान हैं, मिस्टर रिजवान भाई और मिस्टर अनीस भाई, और अरहान गोल्ड से वाबस्ता जो पूरा परिवार है, चाहे वो मालेगांव शहर का हो, चाहे वो औरंगाबाद का हो, ये इतना फैमिली मेंबर की तरह से ये ट्रीट करते हैं लोगों को कि लोग भी उनका प्रोग्राम अपना प्रोग्राम समझते हैं। और इस तरह से एक प्रोग्राम में दो नात पाक यहाँ पर पेश की गई और अज खुद यहाँ पर नाम पेश किए गए। मैं इन दोनों नात खां को मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए अब बिला ताखिर हम अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। और जिस तरह से 16वें साल का जश्न मनाया जा रहा है और अरहान गोल्ड की जानिब से जो ऐलान किया गया था और जो लकी ड्रा का आज आप यहाँ पर मंजर देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखने से कबल मैं चाहूँगा कि आज की इस पुरवकार तकरीब में हमारे ही अपने दरमियान से हम एक अमीर का इंतखाब कर लें और एक सदर का इंतखाब कर लें। और मेरी हुस्न नज़र हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की तरफ जिस वक्त जाती है तो उस वक्त हमारे अपने स्टेज पर मौजूद शहर अजीज़ की एक इंतहाई मिली, समाजी और तालीमी शख्सियत पर नज़र जाकर ठहरती है। और उनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहतरम मौलाना फ़िरोज़ अहमद आज़मी साहब है। आप जमात इस्लामी हिंद के ओहदेदारों में शुमार किए जाते हैं। ज़िले सतह पर आप एक अहम ओहदे पर विराजमान हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत खूबी आप निभा रहे हैं। शहर अजीज़ में कभी भी कोई भी किस्म का मामला हो, आप ज़रूर अपनी खिदमत से उस मसले को हल करने में अपनी खिदमत पेश किया करते हैं। आप कुल जमाती तंजीम के भी एक ओहदेदार हैं, बुनियादी अराकीन में आपका शुमार होता है। आज मैं आपका नाम नामी इसमें ग्रामी आज की इस पुरवकार तकरीब की सदारत के लिए पेश करता हूं और सदर मौसूफ से मुल्तमिस हूं कि वो प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरहमत फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। आइए जिस तरह से यहाँ पर हमारे सदर साहब ने इजाज़त दी है, शायर ने क्या खूब कहा है हमारे इन तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के लिए कि ये वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं जो अपने वक्त के और अपने अहद के एक ज़िम्मेदार और एक हिस्सेदार की हैसियत से अपने आप को मनवा रहे हैं। अपने अपने शोबे हाय हयात में आप बहुत ही अहम जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और आज अपना कीमती वक्त हमारे इतने इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने दिया है। शायर ने ऐसी ही हमाजहत शख्सियात के लिए शेर कहा है कि रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में हो सौदा तो दीवार में दर बनता है। ये दीवार में दर बनाने वाली शख्सियात हैं। अपने अपने शोबे हाय हयात में अपने अपने कारहाय नुमाया के साथ आप मालेगांव शहर की एक शनाख्त बनकर अपने शहर की जिम्मेदारियों को निभाने वाली शख्सियात हैं। शायर ने ऐसी ही शख्सियात के लिए यूँ भी कहा है कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं
मंजिल पे पहुंचते हैं तो एक अहले ज़माना कद्र करो, नायाब न हो कामयाब हैं हम। और ये इनकी तरफ जो नज़्म की गई एक कद्र की निगाह, मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ मिस्टर रिजवान साहब को, मिस्टर अनीस अहमद साहब को, कि उन्होंने शहर की चीदा चीदा शख्सियात को आज स्टेज की रौनक बनाया है और हमारे प्रोग्राम में ये तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हाजिर आए। मैं आपका पुरतपाक खैर मक़दम करता हूँ और यहाँ पर मिस्टर शेख रिजवान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम हमारे सदर मौसूफ की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके आप उनका इस्तकबाल करें। यहाँ पर अरहान गोल्ड के रूहरवां मोहतरम मिस्टर रिजवान साहब जो है वो गुलदस्ता पेश करके मौलाना फिरोज अहमद आज़मी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसी के बाद मैं यहाँ पर फिर मैं ज़हमत दूंगा मिस्टर रिजवान साहब को कि हमारे स्टेज पर जल्वा अफरोज आली जनाब हाजी उबैदुर रहमान साहब 65 नंबर वाले, इनका भी इस्तकबाल करके गुलदस्ता देकर इनका इस्तकबाल करें। मैं उबैद सेठ से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम आगे की जानिब तशरीफ ले आए। हमारे सदर तकरीब के बाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम डॉक्टर अहमद रियाज साहब है। डॉक्टर अहमद रियाज साहब का नाम जिस वक्त भी ज़बान पर आता है तो बिला मुबालगा शामनामा, रोज़नामा, शामनामा का जो पूरा एक सफ़ा है वो हमारी नज़रों के सामने घूम जाता है। मैं मिस्टर अनीस अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम डॉक्टर अहमद रियाज साहब का इस्तकबाल आप अपने दस्त मुबारक से करें। बहुत ही मसरूफ़ शख्सियात यहाँ पर हमारे अपने स्टेज पर जल्वा अफरोज हैं और अपना कीमती वक्त जो है वो यहाँ सर्व कर रही हैं। मैं इन तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सदर साहब के दाएं जानिब मोहतरम मोहम्मद यासीन पप्पू साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और एक मसरूफ़ तरीन शख्सियत है, पप्पू ताज के नाम से शोहरत रखते हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। मैं अफजाल अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। उसी के साथ साथ यहाँ पर मुख्तार अदील साहब मौजूद हैं जो कि नुमाइंदा इनकलाब हैं। एक इंतहाई मसरूफ़ तरीन शख्सियत का नाम है मोहतरम मुख्तार अदील साहब। जहाँ आप अपने कलम की जौलानियाँ बिखेरने में महारत रखते हैं, वहीं आप जिस वक्त माइक पर आते हैं और अपने खिताब नायाब से जब नवाजते हैं तो बस जी चाहता है कि वो बोलते रहे और हम सुनते रहें। आज इस तकरीब में तशरीफ लाए, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। मैं सालिक भाई से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं और मुख्तार अदील साहब का गुलदस्ता देकर इस्तकबाल करें। हमारे स्टेज पर सबा ट्रेडर्स के मालिक शेख अकील साहब तशरीफ रखते हैं। मैं मुसद्दिक भाई से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं और सबा ट्रेडर्स के मालिक मोहतरम शेख अकील साहब का गुलदस्ता देकर इस्तकबाल करें। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं जिनका पुरतबाक खैर मक़दम किया जा रहा है। हमारे स्टेज पर आगे की ही लाइन में, आगे की ही रो में मोहतरम ज़ियाउर रहमान साहब तशरीफ रखते हैं और ज़ियाउर रहमान साहब भी सनती हवाले से अपने आप में एक मुनफरिद नाम है। मैं यहाँ पर गुजारिश करता हूँ अब्दुल सालिक भाई से, साबिर भाई यहाँ पर तशरीफ ले आएँ और ज़ियाउर रहमान साहब का गुलदस्ता देकर इस्तकबाल करें। यहाँ आगे की जानिब यहाँ तशरीफ ले आएँ। हमारे फजलुर रहमान साहब यहाँ पर, मैं माजरत खाऊँ, फजलुर रहमान साहब हमारे स्टेज पर जल्वा अफरोज हैं, उनकी खिदमत में गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल करें। हमारे स्टेज पर पीछे की जानिब सागर स्टोर के रूहरवां मोहतरम हामिद सागर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं सालिक भाई से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम आपकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके आपका इस्तकबाल करें और उन्हीं के बाजू में SA अतर वाले मोहतरम
अब्दुल्ला अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं अब्दुल्ला अहमद साहब का भी यहाँ पर इस्तेक़बाल करता हूँ और साबिर भाई से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेक़बाल करें। इस तरह से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की एक तवील फहरिस्त है। यहाँ पर आरिफ मेमन साहब जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर मसीहा डेंटल, चाहे मेडिकल हो चाहे उनके साहबजादे का हॉस्पिटल हो, एक ज़बरदस्त खिदमत पेश कर रहे हैं। आरिफ मेमन साहब का इस्तेक़बाल मैं चाहूँगा कि मोहतरम सालिक भाई उनका इस्तेक़बाल करें और गुलदस्ता देकर उनकी हौसला अफजाई करें। मोहतरम शहाब अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। नहीं, बिलाल अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं एक मरतबा फिर यहाँ पर सालिक भाई से गुजारिश करता हूँ कि आप उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेक़बाल करें। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं और पीछे की रो में मौजूद हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में ज़किया मैडम साहबा जिन्होंने नात नबी यहाँ पर पेश की। मैं चाहूँगा कि मिस्टर रिजवान अहमद साहब जो हैं उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेक़बाल करें कि यकीनन ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी अपने शबाना रोज़ और शबीना रोज़ मेहनतों से जहाँ दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता रही, वहीं फ़िलहाल जनता बैंक की डायरेक्टरशिप भी निभा रही है। मैं आपका भी इस्तेक़बाल करता हूँ। उनके बाजू में तशरीफ़ रखने वाली मोहतरमा शहनाज मैडम साहबा यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। मैं अनीस भाई से गुजारिश करता हूँ कि अनीस भाई आप मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेक़बाल करें। दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहने वाली ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं। मोहतरमा सबा मैडम यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। मैं अफजाल भाई से गुजारिश करता हूँ कि आप उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेक़बाल करें। इस तरह से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, और यहाँ पर मैं सदर साहब को ज़हमत दूंगा कि हमारे आज के जो हमारे निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इनका भी पुरखलूस इस्तेक़बाल करना हमें बनता है। तो इसके लिए मैं अफजाल भाई को आवाज़ दूंगा कि वो आएँ। रिज़वान रब्बानी सर का इस्तेक़बाल करें। अभी हमारे स्टेज पर तशरीफ़ लाए मोहतरम अंसार पतरावाला साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आपका भी इस्तेक़बाल करता हूँ और मैं अनीस भाई पीछे ही तशरीफ़ रखते हैं। मैं अनीस भाई से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तेक़बाल करें। मैं सदर साहब को एक ज़हमत देना चाह रहा था। हमारे सदर साहब काफ़ी देर से यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और हमारे जो मेज़बान साहबान हैं, दोनों बिरादरान, ये भी इस बात के मुस्तहिक हैं कि इनका भी इस्तेक़बाल किया जाए। मैं सदर साहब को गुजारिश करता हूँ कि दोनों बिरादरान की खिदमत में आप अपने दस्त मुबारक से गुलदस्ता पेश करके, मैं अनीस भाई से भी गुजारिश करता हूँ, अहमद रियाज साहब, मुख्तार अदील साहब, पप्पू ताज साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि खड़े हो जाएं और इस तरह से इनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके इनके हौसलों को जिला बख्शेंगे। इंतहाई कलील मुद्दत में, इंतहाई कलील वक्त में आप दोनों बिरादरान ने अरहान गोल्ड को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ये इन्हीं की मेहनतों का समरा है। यहाँ पर जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ पर इस कुरान अंदाज़ी के सेशन में मौजूद हैं और इस कुरान अंदाज़ी के ताल्लुक से आप तमाम लोगों को बज़रिया फ़ोन भी और बज़रिया ज़बानी भी जो जिस वक्त आपने ख़रीदारी की उस वक्त भी आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया गया है। यहाँ पर मैं एक मुख्तसर सी बात यहाँ पर पेश करना चाहूँगा जो कि प्रोग्राम की गर्द गायब भी हो जाती है और हमें मकसद भी समझ में आ जाता है कि ये किस मकसद के तहत आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ऑफर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जिस तरह से यहाँ पर बताई गई हैं वो ये है कि अरहान गोल्ड एंड डायमंड्स को शहर मालेगांव में 16 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 16वें जश्न सालगिरह के मौके पर जनवरी महीने में
सोना खरीदो और सोना जीतो, इस उन्वान के तहत यहाँ पर इस स्कीम का आगाज किया गया, जिसमें ग्राहकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिसके लिए ये तमाम जो जिम्मेदारान हैं वो आप तमाम के ममनून व मशकूर हैं। और आज लकी ड्रा का दिन है जिसके लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। 16वें जश्न सालगिरह के मौके पर ग्राहकों के लिए 16 सोने के सिक्के लकी ड्रा के जरिए देने का ऐलान किया गया था। लकी ड्रा में नाम मुंतखब होने पर मालेगांव के शोरूम से खरीदी करने वाले मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों को 5 ग्राम के 16 सोने के कॉइन दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि 16 खुशनसीब ग्राहक कौन होंगे जिन्हें ये सोने के कॉइन मिलेंगे। लकी ड्रा सबके सामने कूपन बॉक्स में मौजूद सभी कूपन को घुमाकर छोटे बच्चों के जरिए से एक एक करके कूपन चुने जाएंगे। ये आज के इस प्रोग्राम की गर्ज़-ओ-गायत है। अगर किसी ग्राहक के नाम से एक से ज्यादा कूपन ड्रॉप बॉक्स में जमा किए गए हैं और लकी ड्रा में उस नाम से एक कूपन चुन लिया गया और अगर दोबारा लकी ड्रा में उसी नाम का कूपन निकलेगा तो उस ग्राहक को सिर्फ एक कूपन पर और एक कॉइन ही दिया जाएगा। लकी ड्रा में एक ग्राहक को एक कूपन ही दिया जाएगा। दोबारा नाम आने पर इस ड्रा को रद्द कर दिया जाएगा। यानी हो सकता है कि किसी की किस्मत चल जाए और एक से जायद मर्तबा उसी का नंबर निकल जाए, तो वहां पर ये पाबंदी लगाई गई है कि किसी एक ही ड्रा में उनका शुमार किया जाएगा। जो भी लकी ड्रा में पाते ग्राहक होंगे उनको अरहान गोल्ड एंड डायमंड्स की जानिब से पेशी मुबारकबाद दी जाती है। इसी तरह का ऑफर औरंगाबाद के शोरूम में भी चल रहा है। जो मालेगांव में हिस्सा लेने से रह गए हों उन मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश है कि वो अभी औरंगाबाद के शोरूम पर जेवर की खरीदी करके हिस्सा ले सकते हैं। औरंगाबाद के शोरूम पर ऑफर की मियाद 6 जून मुकर्रर की गई है। बरोज़ जुमेरात को वो खत्म होने वाली है और वहाँ लकी ड्रा का प्रोग्राम 7 जून बरोज़ जुमा को हज हाउस शाही मस्जिद के पास VIP रोड औरंगाबाद में इसी तरह मुनक़िद किया जाने वाला है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बतलाता चलूं कि हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ ग्राहक जो हैं वो 16 साल से अरहान गोल्ड के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। कुछ ग्राहक जो हैं वो कुछ अरसे के बाद अरहान गोल्ड से जुड़े हैं और कुछ ग्राहक जो है अभी ताज़ा जुड़े हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए ये बात बतलानी ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले साल के ऑफर के बारे में भी एक थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि पिछले साल भी इसी तरह का बम्पर लकी ड्रा अरहान गोल्ड फेस्टिवल ऑफर रखा गया था। उस ऑफर में मालेगांव और औरंगाबाद दोनों शहरों के ग्राहकों को एक्टिवा गाड़ी जो है वो तफवीज़ की गई थी। चुने गए जो लकी ड्रा में जिनका नाम आया था तो उनको ये गाड़ी तफवीज़ की गई थी। हमारे स्टेज पर सलीम अहमद अजीम टेक्सटाइल वाले यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। मैं गुलदस्ता पेश करके सालिक भाई से गुजारिश करता हूँ कि गुलदस्ता पेश करके उनकी इज्जत अफजाई करें। मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर अरहान गोल्ड के मिस्टर रिजवान अहमद साहब और मिस्टर अनीस अहमद साहबान ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है आप तमाम लोगों का। और 16 साल से जो एतमाद आप लोगों ने जाहिर किया है उस एतमाद में मजीद पुख्तगी के लिए यहाँ पर गेट टुगेदर का इंतज़ाम किया गया और अरहान गोल्ड एंड डायमंड्स को आप सब के भरोसे और एतमाद ने इस काबिल बनाया है कि हम अपने 16 साल तिजारत में कामयाब रहे। तिजारत जो कि सबसे अहम शोबा है, इस 16 साल सफ़र में हमने ग्राहकों को नुकसान से बचाने और सोने के ज़ेवरात खरीदने की सही मालूमात देने की पूरी कोशिश की है। ये मिस्टर दोनों बिरादरान जो हैं ये उनके दिल की आवाज़ है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि इन्होंने मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों को नुकसान ना हो किसी भी तरह से, जो भी नुकसान वो माजी में उठाते रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी सोने की खरीदारी कर रहे हों और उसमें जिस तरह से भी उन्हें नुकसान आया होगा, नुकसान हुआ होगा, उसकी तलाफी और आइंदा कोई नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए इन बिरादरान ने अपने इस कारोबार को मज़ीद तक़वियत बख्शी है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अरहान गोल्ड जो है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की राहों पर गामजन है और 16 साल का अरसा
یہ ایک چھوٹی سی جگہ پر جاری کرنے کے بعد جو ہے وہ آج ایک شو روم کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور مزید آگے کے جو عزائم ہیں وہ جس وقت ہمارے رضوان بھائی مائک پہ تشریف لائیں گے تو اپنے آگے کے عزائم سے ہمیں روشناس کروائیں گے۔ یہاں پر ارحان گولڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہال مارک والے زیور کی صحیح معلومات جو ہے وہ ہم اپنے گاہکوں کو دے رہے ہیں، اور بنا ہال مارک والے اور کم پیور جو سونے کے زیورات ہیں اس کی جو صحیح چیز ہے، وہ صحیح بات جو ہے وہ بتا کر وہ گاہکوں کا جو ہے وہ دل جیت رہے ہیں، اور گاہک بھی جو ہے ان کی ان باتوں سے بہت اطمینان حاصل کیے ہوئے ہیں، اور نہ صرف گاہک خود آ رہے ہیں بلکہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، حویش و اقربا کو بھی وہ لے کر آ رہے ہیں، اور سونے کی جو خریداری ہے جو کہ انتہائی ذمہ داری کی خریداری ہو جاتی ہے، اس میں وہ بہت کامیابی سے جو ہے وہ ان برادران کا سپورٹ کر رہے ہیں، ارحان گولڈ کو طاقت دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہ آگے بھی آپ لوگوں کے جو تعاون کے خواستگار ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس حال میں موجود جو معزز خواتین و حضرات ہیں، جو اسٹیج پر موجود ہمارے معزز مہمانان ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی خریداری کا سلسلہ جو ہے وہ یوں ہی جاری و ساری رکھیں، اور جو ایماندارانہ تجارت جو ارحان گولڈ کی جانب سے کی جا رہی ہے اس میں اپنا دست سے تعاون دراز کریں۔ یہ اس پروگرام کے پورے غرض و غایت تھی، ہم نے معزز مہمانان کا استقبال بھی کیا۔ آئیے کہ اس سے پہلے ہم قرآن اندازی کی طرف بڑھیں تو ہم ہمارے معزز مہمانان میں سے چند لوگوں کو سماعت کریں گے، ان کے تاثرات کو ہم سنیں گے۔ میں دعوت سخن دوں گا محترم مختار عدیل صاحب کو کہ عذرائے کرم مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ ارحان گولڈ کی جشن کی اس تقریب کے صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما تمام معززین اور نشستوں پر بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات، سن 2007 میں ارحان گولڈ مالیگاؤں میں شروع کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ پریوار بنیادی طور سے شولہ پور کے بارسی تعلقے سے تعلق رکھتا ہے۔ بارسی مالیگاؤں جیسا ایک بڑا شہر ہے، وہاں ان لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پر تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک رخ طے کیا کہ اس کاروبار کو وسعت دینا ہے، اور اورنگ آباد آئے، پھر اس کے بعد مالیگاؤں آئے۔ اب ان کی پلاننگ جو ہے کسی اور شہر میں ایک تیسری برانچ کی افتتاح کی۔ دنیا کی تاریخ میں سونے کا کاروبار جو ہے بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ 91 سے 95 کے درمیان جو ہماری یونین گورنمنٹ تھی، اس نے ملک کی افراط زر پر قابو پانے کے لیے ملک کا سونا ورلڈ بینک کو دیا۔ سونے کے عوض جو ہے، مجھے یاد آتا ہے شاید وہ، میں نام لینا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم کا، مجھے پسند ہی نہیں ہے وہ، جس کے اوپر ایک عبادت گاہ کی مسماری کا الزام بھی ہے، بلکہ مجرم بھی ہے وہ۔ انہوں نے اکنامی سنبھالنے کے لیے بیسک انہوں نے نہیں، ان کی کیبنٹ میں جو وزیر مالیات تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب، جو بعد میں وزیر اعظم ہوئے، انہوں نے تجویز لائی تھی بھارت کے پاس جو سونا ہے اس کو رکھ کر کے کیش پیمنٹ لیا جائے، اور ملک کی اکنامی پر جو بڑھ رہی ہے مہنگائی، اس پر قابو پایا جائے۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ، سلطنت دکن کے آخری فرمان روا آصف جان سابق میر عثمان علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس ملک کی آزادی کی تحریک کو مدد کرنے کی ضرورت آئی تو انہوں نے ٹنوں سے سونا دیا تھا۔ کئی میں نے 55 ٹن بھی پڑھا ہے، کئی 50 ٹن بھی پڑھا ہے، بہرحال اس کی تعداد مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے
सोना आप खरीदने जाते हैं ग्राम से तोले से खरीद के लाते हैं, 80,000, 70,000, 74,000 जो भी रेट होगा मार्केट का। आप सोचिए कि इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उसको दिला बख्शने के लिए सल्तनत दक्कन के हुक्मरान ने टनों से सोना जो है दान कर दिया। उससे पहले की एक रिवायत है, सूरत शहर जब मुस्लिम सलातीन के ज़ेर असर आया, हमारे यहाँ से करीब है वो 297-98 किलोमीटर का एक शहर है, बहुत बड़ा तजारती मरकज़ है। उस शहर में ज्वेलरी जो सोने और चांदी की नक्काशी का काम नहीं होता था। तारीख में एक रिवायत मेरे पढ़ने में ये आई है कि अकबर आज़म ने सोने के कारीगरों को ला के वहाँ बसाया था कि आप इस शहर में रहिए, आबाद हो जाइए, यहाँ अपने ख़ानदान बसाइए, ज़िंदगी गुजारिए और इस शहर में सोने का कारोबार शुरू। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस मुल्क में सोने की आप अगर तारीख देखेंगे तो उसकी अफादियत से, उसकी अहमियत से, माशी नुक्ता निगाह से उसकी अफादियत को बालातर रखने में मुस्लिम सलातीन हो, हुक्मरां हो या कारोबारी लोग हों, वो हमेशा से सफ़े अव्वल में रहे। फिर एक दौर आया कि इस कारोबार की सबसे कलमा पढ़ने वालों का नाम निकल गया, उनकी हैसियत जो है या तो मुलाजिम की रह गई या तो वो सोने की खदानों में मजदूर हो गए। लेकिन हालात बदले। ये अरहन गोल्ड वाले दोनों भाई जो हैं, अनीस भाई और रिजवान भाई, इन लोगों ने समझा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कैसे फैलाना चाहिए। आमतौर से हमारी कम्युनिटी में इस कारोबार की तरफ रुझान दिखाई नहीं देता। इन्होंने इस रुझान को पैदा किया है और इससे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक आप लोग हैं कि आप इनके दस्तोबाजू बने। इस रुझान को परवान चढ़ाने में, इसको तक़वियत देने में, इसको एक अच्छा मंजर देने में आप लोगों का बड़ा हिस्सा है। क्यों है कि आपने इनके नाम पे एतमाद किया और नाम पे आपने एतमाद किया तो इन मालिकान ने आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। आपको ईमानदारी से खरा सोना, टकसाल का सोना और जो सरकारी कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक फ़रोख्त होने वाला सोना है आपको वही दिया। सोने के नाम पे आपको कोई दूसरी चीज़ नहीं दी इन्होंने। ये शायद पहला मौका है कि किसी कारोबारी फर्मों के प्रोग्राम में इतना बड़ा मजमा देखने में आ रहा है। इसमें जहाँ हमारे भाई और बुजुर्ग सरपरस्त बैठे हैं, उससे बड़ी तादाद में हमारी इज्जत माँ ख़वातीन, माएँ, बहनें और बेटियाँ बैठी हुई हैं। ये इस बात का सबूत है कि अरहन गोल्ड के ऊपर मालिकान एतबार करता है और सच में इस फर्म के जो मालिकान हैं ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने इस शहर में ये कारोबार शुरू किया। आमतौर से आप देखेंगे, मैं रुझान आपको बताता हूँ, बहुत बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स मालिकान क्यों नहीं आते मालूम है? उनको समझता है कि अगर हमने ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, इधर रेती खड़ी सीमेंट जो है ला के रखे, वो रात को 10 गोनी सीमेंट रखेंगे तो सुबह क्या मिलेगा कोई भरोसा नहीं। मेरी बात सच है, आप लोग मानते हैं इस बात को? सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती से ये रुझान परवान चढ़ा गया। इसी तरीके से कारोबार में भी है। तो बड़े कारोबारी शहर में आए, जब बड़ी फर्म आती है, बड़ा तजारती इदारा आता है, बड़ी कंपनी आती है, तो लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को सहूलत होती है, आसानियाँ होती है। जलगांव में सोने का बहुत बड़ा मार्केट है। जिनको ज़ायद मिकदार में सोना लगता था, बड़ी फैमिलीज़ को, कारोबारी लोगों को, वो जलगांव का रुख करते थे। बम्बई, मैं भी बात कर रहा था इनसे, तो बता रहा था कि मैंने 2008 में 7 के दौरान में बम्बई के अंदर मैंने देखा है ज़वेरी बाज़ार, पूरी लाइन जो है, गलियाँ जो है, सोना फरोख्त होता है वहाँ पर। उसके बाद BKC में डायमंड का मार्केट है। पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है डायमंड का मार्केट है, जहाँ पे कीमती पत्थरों के साथ जो है हीरे फरोख्त होते हैं। जैसे हलवाई की दुकान पे मिठाई सजी रहती है, वहाँ शोरूम में हीरे सजे रहते हैं। अभी उसका एक हिस्सा जो है दूसरी जगह मुंतकिल हो गया। हमारे शहर
پہ جاتے تھے، اب یہ ساری چیزیں، یہ سہولت جو ہے یہ آپ کے اپنے شہر میں میسر ہے، تو آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیے، اور ان مالکان کے اوپر آپ نے جو اعتماد کیا ہے، یہ مالکان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اول درجے میں شہر کے لوگوں کا، صارفین کا، مسلمانوں کا اعتماد مضبوط رکھیں، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے شانہ بشانہ رہیں۔ ایک کمیونٹی میں نئے کاروبار کا جو رجحان آیا ہے، اس کو فروغ دینے میں ہم سب اپنا سماجی، ملی اور معاشی فریضہ انجام دیں۔ میں اتنا کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ مختار عدیل صاحب نے اپنے گراں قدر خطاب سے یہاں پر ہمیں محظوظ کیا، نوازا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انہوں نے جو یہاں پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، شاعر کہتا ہے کہ خدائے برتر تیری نوازش، قدم قدم پر تیرا دگانا، تو ان کے خوابوں میں رنگ بھر دے کہ رشک کرتا رہے زمانہ۔ ارحان گولڈ کے جو یہ برادران ہیں، جو یہ روح رواں ہیں، یہ ان کے جو عزائم ہیں، ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہے، ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہے، مالیگاؤں شہریان کا مکمل تعاون ان کے ساتھ ہے۔ آئیے اس موقع پر ایک اور تاثر ہم سماعت کریں گے۔ ہماری معزز خواتین یہاں پر اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں صبا میڈم سے گزارش کرتا ہوں کہ عذرائے کرم مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہزاروں تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کی جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، وہی پروردگار کہ جس کی مرضی کے بغیر پتا بھی جنبش نہیں کرتا، کہ دل شکستہ کو مژدہ سنانے والا تو، اندھیری رات میں سورج اگانے والا تو، اور ثبوت چاہا رسالت کا اور وحدت کا، تو کنکروں سے گواہی دلانے والا تو۔ آئیے اب ہزاروں درود و سلام اس مقدس ہستی پر کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ پریشاں بہت تھی ٹھہرنے سے پہلے، نظر سبز گنبد پہ پڑنے سے پہلے، اور رخ مصطفیٰ چاند دیکھے ہے جس دم، نکلتا ہے وہ بھی جھجکتا ہے وہ بھی نکلنے سے پہلے، اور گناہوں سے پاک ہو لو مکے میں جا کر، رضا تم مدینہ پہنچنے سے پہلے۔ اسٹیج پر محترم صدر صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز معززین شہر اور معزز مہمانان اور تمام سامعین کرام، یہ ہمارے لیے بڑے ہی فخر اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہم ارحان گولڈ کے 16ویں سال کے جو دکان جو ہے ان کی 16ویں سال میں داخل ہو رہی ہے، ہم اس بڑے پروگرام کا ایک حصہ ہیں۔ حاضرین، ہمارے اپنے شہر میں یوں تو بے شمار ایسی دکانیں ہیں جہاں پر سونے اور چاندی کے کاروبار ہوتے ہیں، اور بہت ہی پرانی اور قدیم دکانیں آج بھی موجود ہیں، لیکن صرف 16 سال کے عرصے میں انہوں نے جس طریقے سے اپنا سکہ جو ہے ہمارے اپنے شہر پر بٹھایا، اور جہاں تک میں جانتی ہوں کہ ارحان کے معنی بھی ہوتے ہیں رولر یا کنگ کے، تو واقعی ان ارحان گولڈ کے جو مالکان ہیں انہوں نے ایک کنگ یا بادشاہ کی طرح ہی جو ہے اس شہر پر اپنی شناخت جو ہے وہ قائم کر لی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، جو بھی یہاں سے کاروبار کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم جب کسی سونار کی دکان پر جاتے تھے تو اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو یا خاتون کو لے کر جاتے تھے جن کو معلومات ہو کہ وہ سونا جو ہے اس میں کتنی پیورٹی ہے، وہ ہمیں کہیں دھوکہ تو نہیں ہوگا۔ تو ان سب سے ہمیں ان لوگوں نے کافی جو ہے وہ اطمینان دیا ہے۔ اب کوئی بھی اکیلے جو ہے ان کی دکان پر جا کر اپنا سونا جو ہے وہ بیچ بھی سکتا ہے، خرید بھی لیتا ہے، اور بہت ہی بہتر طریقے سے یہاں پر جو ہے ہم کو اطمینان بخش کاروبار جو یہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو ہے ان کی جو مختلف اسکیمیں انہوں نے شروع کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے میکنگ چارجز میں جو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پر خواتین کو، اس کی وجہ سے
अमीर के साथ साथ एक गरीब शख्स भी जो है वो इंतहाई इत्मीनान से यहाँ पर सोने की खरीदी बहुत ही मुनाफा बख्श तरीके से कर सकता है। तो इसके लिए मैं इन तमाम लोगों को, इनके मालिकान को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और तमाम लोगों की तरफ से जिन्होंने खरीदी में हिस्सा लिया, और उन लोगों को भी मुबारकबाद जिनके नाम जो है क़ुरानंदाज़ी में निकलने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से भी आपका फ़ायदा है। आज सोने का भाव जिस हिसाब से तेज़ी से आगे की जानिब जा रहा है, अगर क़ुरानंदाज़ी में आपका नाम निकलता है तो भी आपको इसका बहुत फ़ायदा है। तो आज इन्होंने जो सोना जीतो सोना खरीदो जो मुहिम चलाई थी, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मोहतरमा सबा मैडम ने अपने ज़र्रे ख़यालात का यहाँ पर इजहार किया, और जहाँ आपने इस सोने के कारोबार के ताल्लुक़ से जो सारी बातें आपके सामने पेश की, वहीं पर जो इस कारोबार के मालिकान हैं, अरहान गोल्ड के रूह रवां हैं, मोहतरम मिस्टर रिजवान शेख साहब और मिस्टर अनीस शेख साहब, इनको भी उन्होंने हौसला अफजाई के कलमात से नवाजा कि शायर ने कहा है कि देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। यानी शराब मार्केट में अपने आप को झोंक देने वाली ये शख्सियात अगर खुदा न खास्ता नाकामी की सूरत में अगर इनके सामने कोई चीज़ आ जाती तो ये कहाँ जाते या क्या करते। लेकिन देखिए कि अगर हम ईमानदारी से और मुकम्मल जज्बे के तहत अगर कोई काम करते हैं तो इस तरह से कामयाबी और कामरानी हमारे कदमों को चूमती है। आज अरहान गोल्ड एक छोटी सी दुकान के बाद एक शोरूम की शक्ल इख्तियार कर गया है, और ये सारी चीज़ें आप बखूबी जानते हैं। और आज हम इस तकरीब में यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा जहन पूरा जो लगा हुआ है वो इस क़ुरानंदाज़ी पर लगा हुआ है। आइए वो वक्त आन पहुँचा है। इससे पहले कि यहाँ पर क़ुरानंदाज़ी की जाए, मैं चाहूँगा कि हमारे सदर तकरीब मोहतरम मौलाना फ़िरोज़ अहमद आज़मी साहब माइक पे तशरीफ़ लाएँ और खुतबा सदारत पेश कर दें, ताकि उसके बाद क़ुरानंदाज़ी का सिलसिला जारी व सारी किया जा सके। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मौलाना फ़िरोज़ अहमद आज़मी साहब को माइक पर दावत सुखन देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम जनाब अहमद रियाज साहब, मोहतरम मोहम्मद यासीन पख्तूका साहब, मोहतरम अकील साहब, और इस तरह के इस स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, और मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे शहर में बहुत सारे छोटे बड़े मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम मुनक़िद होते रहते हैं, लेकिन जैसा कि मुख्तार अदील साहब ने कहा कि अपनी नौइयत का एक बिल्कुल मुनफरिद और अलग प्रोग्राम है जो सनत हिरफत या तिजारत से ताल्लुक़ रखता है, और ये सिलसिला पिछला साल से शुरू हुआ, और इस शानदार प्रोग्राम को हम महज सोने के चंद सिक्कों की तक़सीम का प्रोग्राम न समझें। इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे पैगाम हमारे सामने आ रहे हैं जिसे हमें महसूस अगर हम करें। मैं एक बात की तरफ सिर्फ तवज्जो दिलाऊंगा जो मैंने महसूस किया है, वो ये है कि देखिए आज हमारे मुल्क में उम्मत मुस्लिमा के बिलख़ुसूस जो मसाइल, और उसमें हमको जिस तरह से हुकूमती सतह पर या दीगर ज़राए से हर शोबे में कमज़ोर करने और पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है, और हमारे नौजवानों को ये जो शिकायत होती है कि तालीम हासिल करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, तो इसमें
ایک خاص بات میں کہوں گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں تو الحمدللہ یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ کیا اس سے بدتر بھی حالات ہو جائیں تو مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ ان خراب حالات میں راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے مسلمان، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے حالات سے نکلنے کے مسلمانوں کے بہت سارے تجزیے ہوتے ہیں، بہت سارے نسخے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو سرپرست ہیں وہ اپنے بچوں کو، اور جو بچے ہیں وہ تعلیم میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مشاہدہ اس بات کا گواہ ہے کہ واقعی جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی تو ان کو کوئی ترقی کرنے سے روک نہیں سکتا، لیکن اس موقع پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حصول تعلیم کا مقصد صرف ہم اس کو نوکری سے یا جاب سے نہ جوڑیں، اور بہت سارے مواقع تجارت میں ہمارے سامنے ہیں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ آدمی غور کرے کہ وہ نوجوان اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنا حوصلہ، اپنے عزم و ارادہ، اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنی صحت، اپنی محنت اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی بنیاد پر کیا کر سکتا ہے، اس کو وہ کام شروع کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ کتنی بڑی مثال ہمارے سامنے یہ رضوان بھائی اور انیس بھائی کی ہے کہ ان لوگوں نے ایک نیا طرف اشارہ کیا متعدد صاحب نے کہ اس پیشے میں بہت کم لوگ ہمارے تھے، لیکن لوگوں نے اس پہ قدم رکھا اور الحمدللہ آج کامیابی ان کی قدم چوم رہی ہے۔ تو کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نوازنا چاہتا ہے تو ہر نوازش سے پہلے آزمائش ہے۔ ہمارے نوجوان یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو شروع کرتے ہیں اور تھوڑی بھی کچھ اگر مخالف چیزیں آ گئیں یا کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو فوراً جو ہے وہ راستہ بدل دیتے ہیں۔ وہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اگر آپ آزمائش میں ثابت قدم رہے تو یقیناً اللہ کی نوازش ہوگی۔ تو یہ نئے لوگوں نے اس میں قدم رکھا اس پیشے میں خود ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ گھر کا سربراہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن جب کبھی سونے کے زیور کی خریدنے کی بات آتی تھی بہت گھبراتا تھا اور اپنے دوستوں سے ان سے پوچھتا تھا کہ کہاں جاؤں، کس سے جاؤں، کون با اعتماد ہے۔ لیکن ان کے ٹکار محلے کی جو دکان تھی جب میں وہاں گیا تو پہلی ہی بار ان لوگوں کی بات چیت، ان کے کام کرنے کے انداز، ان کے تجارت کا جو مطلب سلیقہ بندی، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے مجھے اسی وقت پورا یقین ہو گیا کہ بہت اچھا یہاں اعتماد کے ساتھ سودا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ سلسلہ رہا اور بعد میں جب یہ پتہ چلا کہ بڑا شو روم جو ہے کافی معاملے دار آفس میں کھلا ہے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، خوشی تو ہوئی لیکن حیرت نہیں ہوئی، اس بنا پر کہ میں نے پہلے ہی محسوس کر رہا تھا کہ آگے جانے والے ہیں۔ جس طرح ہمارے اردو میں کہاوت ہے کہ ہونہار گروا کے چکنے چکنے پار، تو وہ ہونہاری کو میں نے اس وقت محسوس کیا تھا اور واقعی اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان کو عطا کی۔ اور یہ جو میں بات دوبارہ کہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ سروس ملتی ہے اچھی بات ہے، کوئی جاب ملتا ہے آپ اس کو جوائن کریے، لیکن نہیں ملتا ہے تو اس میں آپ مایوس ہو کر کے، پریشان ہو کر کے اور اپنے آپ کو بالکل ناکارہ نہ سمجھیں، بلکہ اس میں راستے کھلے ہوئے ہیں تجارت میں، اور تجارت کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی، اس میں برکت ہے۔ میں آپ کو اس موقع پر مختصر کچھ اپنی بات بتا دوں۔ میں نے گریجویشن کیا، میرے والد صاحب میرے ماموں یہاں پر بیکری کاروبار کرتے تھے، میرے بھائی شوکت صاحب ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لوگ کاروبار کرتے تھے، لیکن اس فیلڈ میں کوئی نمایاں کام نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اپنی تحصیل علم کے بعد کاروبار میں جب ہم لوگ آئے، ہم نے اس وقت ایک بس کے اوپر ایسے بورڈ دیکھا تھا کہ نوکری مانگنے والے نہیں، نوکری دینے والے بنو۔ تو ہم لوگوں نے کوشش کی کاروبار میں آنے کے بعد، تو الحمدللہ آپ دیکھیے کہ مہاراشٹر بیکری، نیو مہاراشٹر بیکری آج شہر میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اور اس کے بعد شہر کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اس پیشے کی طرف راغب ہوا اور بہت سارے مطلب شو روم اور بیکریاں کھلی۔ تو اس طرح سے، اور آج تو حالات ایسے ہیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی آپ شروع کریے، واقعی اگر آپ کے اندر عزم و حوصلہ ہے، سلیقہ مندی ہے، اعتماد ہے اپنے اوپر اور اللہ پر اعتماد ہے، تو آپ اگر اس میں جدوجہد اور ثابت قدمی ساتھ کرتے ہیں تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے اور آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بارے میں یہی بات کہہ رہا تھا، یہ پروگرام ہم کو ایک طرح کا یہ پیغام دیتا ہے
کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کبھی مایوس نہ ہوں. اگر ان کو تعلیم تو حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ کاروبار بھی کریں تو تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد ہی، اس لیے کہ وہ کاروبار جو بغیر تعلیم ہوتا ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو پہلی بات ظاہر ہے کہ تعلیم میں ہم آگے آئیں اور تعلیم کے بعد ہم تجارت کو اپنا پیشہ بنائیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کو بلکہ ہماری ملت کو اللہ تعالیٰ، ہمارے شہر کو، ہماری ملت کو معاشی طور پر اللہ تعالیٰ توانا کر دے گا. میں یہی احساسات ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر بلا کر کے اتنی عزت افزائی کی گئی. مجھے علم بھی نہیں تھا کہ مجھے صدارت کا منصب دیا جائے گا اور میں مستحق بھی نہیں ہوں. بہرحال اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے جو حوصلہ اور جو عزت بخشی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ، راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. شاعر نے یہی اشارہ دیا ہے اس شعر کے ذریعے کہ اپنی کوشش میں لگے رہنا، اور جب تک ہم اپنے سوچ اور اپنی منزل کا جو ہم نے تعین کیا ہے وہاں تک نہ پہنچ جائیں تب تک کوشش جاری رکھنا چاہیے. اور یہی کام جو ہے ان برادران نے کیا ہے. میں انہیں نہ صرف اپنی جانب سے بلکہ یہاں پر موجود تمام حاضرین کی جانب سے 16ویں سال کی جو یہ جشن سالگرہ کی تقریب ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بہت ہی کم وقت میں جس طرح سے ان لوگوں نے شہر عزیز مالیگاؤں میں اپنا ایک مقام، اپنی ایک منفرد شناخت بنائی ہے، اس شناخت کو اللہ تعالیٰ، ہماری نیک خواہشات ہے کہ تا دیر اس شناخت کو قائم و دائم رکھے. آئیے اب وقت آ پہنچا ہے کہ ہم قرآن اندازی کریں اور 16 ایسے خوش نصیب لوگوں کا یہاں پر قرآن میں نام نکلنے والا ہے جن کا یہاں پر جن کی قسمت چلنے والی ہے. سبھی کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہوگا کہ شاید ہمارا نام اس قرآن میں نکل جائے، شاید ہمارا نمبر اس قرآن میں آ جائے. یہاں پر منتظمین نے بہت ہی خوبصورت بچوں کا یہاں پر انتظام کیا ہے تاکہ وہ آ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے اس قرآن اندازی کے مرحلے کو انجام تک پہنچائیں گے. میں منتظمین جو کہ بہت ہی فعال ہیں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر میں چاہوں گا کہ 16 بچے مکمل ہو جائیں تب قرآن اندازی کی جائے. جو چھوٹے بچے ہیں وہ دھیرے دھیرے آگے آ رہے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر 16 کرسیوں کا نظم کیا گیا. ایک بچی واپس جا رہی ہے، اسے اس قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایسا اس کا ماننا ہے. بہرحال بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر وہ شاید ہمارے منتظمین کو دیکھ کر ڈر گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ سیدھی جانب سے ایک بچے کو اسٹیج پر بلایا جائے اور یہاں پر اب بچہ بدلا نہیں جائے گا، ایسا اعلان کرنا پڑے گا مجھے. بقیہ بچوں سے گزارش ہے کہ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر سکون سے اس پورے ایونٹ کو دیکھیں، محظوظ ہوں اور لطف اندوز ہوں. میں مسٹر رضوان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرات کرام آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور یہاں پر شاید 15 ہی بچے ہیں، 16 ایک بچے کا مزید اضافہ کیا گیا. دیکھیے یہ حسن انتظام دیکھیے کہ جن بچوں سے ہم قرآن اندازی کروانے جا رہے ہیں ہم انہیں بھی عزت سے نواز رہے ہیں، انہیں بھی کرسی دے رہے ہیں. کرسی کے لیے آج پورا ہندوستان جو ہے وہ خیر جانے دی. آئیے یہاں پر آپ تمام کے سامنے اس پورے بکسے کو جو ہے وہ یہاں پر راؤنڈ شیپ میں گھمایا جائے گا تاکہ جن کا نمبر نکلنے والا ہو
वो अंदर खूब घुल मिल जाए और उसका नंबर ना निकल सके। ऑलरेडी सर का कहना है कि ऑलरेडी हमने बहुत घुमाया है और आपके सामने मजीद घुमा रहे हैं। यानी शफाफियत देखिए कि जिस तरह से कारोबार में आप शफाफ हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस कुरान अंदाजी में भी शफाफियत का मुजाहरा किया जा रहा है। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के सामने यहाँ पर मुंतज़मीन ने घुमा दिया है और बस कीजिए कुछ ज़्यादा घूम गया है वो। आइए यहाँ से एक एक बच्चे को ऊपर लाया जाए। पहले एक बच्चे को यहाँ पर ऊपर लाया जाए उस साइड से, और बैठो बेटा। अच्छा, इस बॉक्स को जो है देखिए, वो भी बॉक्स जो है वो मुकम्मल तरीके से जिस तरह से वोटिंग के बाद जो है वीवीपैट को सील कर दिया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी बंधन बांध दिया गया है। और मैं सदर साहब से, रिजवान भाई से, अनीस भाई से गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम आगे की जानिब तशरीफ ले आए और सदर साहब जो है उस रिबन को कट करके इस बॉक्स के दरवाजे को खोलें ताकि कुरान अंदाज़ी का जो मरहला है वो मुकम्मल किया जा सके। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सदर मौजूद ने इस बॉक्स की रिबन को जो है वो कट किया और यहाँ पर बच्चा भी मौजूद है। मैं मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ कि बच्चे को किस तरफ से, आगे की जानिब से, ये एक बाउल है हमारे पास जिसमें कुरान अंदाज़ी का कार्ड निकाल कर उसमें रखा जाएगा। तो 16 एक मिनट, हाँ बेटा फिर से निकालो। अच्छा ठीक है, निकाल दीजिए। बहुत अच्छी, क्या बात, गुड। जाओ बैठ जाओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये एक कार्ड निकालने के बाद दोबारा उसे घुमाया जा रहा है। सदर तकरीब के हाथ में वो बर्तन है जिसमें ये 16 खुशनसीब लोगों के कार्ड को यहाँ पर जमा किया जाएगा ताकि उसके बाद उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। ये घुमाने के बाद दूसरा बच्चा जो है वो यहाँ पर कुरान अंदाज़ी का मरहला अंजाम दे रहा है और सीधे हाथ से जो है वो अपना एक कार्ड निकाल कर यहाँ पर उस बर्तन में रख दिया। आइए तीसरे बच्चे को हम यहाँ मदू करते हैं। माशाअल्लाह बच्ची है और देखिए किसकी किस्मत का दरवाजा खोलती है। एक बेहतरीन इवेंट के हम सब यहाँ पर गवाह हैं कि देखिए किस तरह से सदर मसूद ने बच्ची को गोद में उठा लिया और सीधे हाथ से वो एक पर्ची जो है निकाल कर सदर साहब के पास मौजूद बर्तन में डाल रही है। खोलना नहीं बेटा, डाल दीजिए, शाबाश, गुड। हमारे अहद के जो बच्चे बड़े चालाक हैं वो खोल कर देख रही थी, बहरहाल उसे रोक दिया गया। आइए 4 नंबर का जो बच्चा है यहाँ आ चुका है स्टेज पर और घुमाने के बाद जो है एक पर्ची आपको निकालना है बेटा। बहुत अच्छे, शाबाश। आइए 5वें नंबर का बच्चा जो है वो स्टेज पर आ रहा है और 5वीं पर्ची यहाँ पर निकाली जा रही है। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होगा। बेशक सामने सोच रहे होंगे कि काश मैं भी बच्चा होता तो आज ये पर्ची मैं निकाल रहा होगा। बहरहाल अब तो वो दिन हवा हुए। बहुत अच्छे, अगला बच्चा, अगला नंबर। एक पर्ची हर बच्चा यहाँ पर निकाल रहा है और सदर साहब की खिदमत में पेश कर रहा है। यकीनन जिस वक्त ये 16 लोगों का यहाँ पर ऐलान होगा उस वक्त हाल में मौजूद हमारे मुअज़्ज़ज़ ग्राहक, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात में से देखते हैं कि किसकी किस्मत का सितारा यहाँ पर चमकता
सकता है। ज़ायदा 4,500 कोकन इस बक्स में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यानी बोलना चाहिए कि काबिले कद्र लोगों ने इसमें तवज्जो दी और सोने की खरीदारी भी बढ़ चढ़कर की और कोपन का इस्तेमाल भी आप लोगों ने किया। और यहाँ पर जो महिमा या देखना चाहिए कि डायमंड लाउंज में जो वकील है ख़वातीन और हज़रात का, यहाँ पर मैदान में भी कुर्सियाँ लगाई गई हैं और कुरान तालीम का सिलसिला जारी है। हर बच्चा एक पर्ची निकाल कर उस बाउल में डाल रहा है। कितने बच्चे हुए? हाँ देखो कहीं 16 की बजाय 18 में निकल जाए, वरना यहाँ पर हमारे जो मौजूद मेजबान होता है 11वां बच्चा यहाँ पर मौजूद है, 12वां बच्चा मौजूद है और 12 पर्चियाँ निकल चुकी हैं। 12वीं निकलेगी, 12वीं पर्ची निकल चुकी है और 13 नंबर पर एक बच्चा हाजिर है। वो 13वीं पर्ची निकालने के लिए बड़ा उत्साहित है और आखिर में एक बच्ची आ रही है। ये एक राउंड और घुमाया जाए, 14 और 15, 16, क्या बात है। इस तरह से मालेगांव शहर में अपनी मुनफरिद का इंतहाई मुनफरिद और अपनी नौइयत का इंतहाई मुनफरिद प्रोग्राम यहाँ पर जारी उतारी है और जिसमें न सिर्फ बुजुर्ग हज़रात मौजूद हैं, ख़वातीन वो मर्द हज़रात मौजूद हैं, बल्कि बच्चे भी शान बशाना इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और अपनी शिरकत दर्ज करवा रहे हैं और अपने नन्हे नन्हे हाथों से ये 16 लोगों की किस्मत के दरवाजे को खोलने वाले हैं। अरहान गोल्ड इस मानों में भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इस तरह से मुनफरिद नौइयत के प्रोग्राम वो हर साल यहाँ पर पेश करने में अपनी कोशिशों में कामयाब रहा है। गुज़िश्ता साल एक्टिवा गाड़ी से लोगों को सरफराज किया गया और इस मरतबा जो है 5 ग्राम का सिक्का जो है सोने का वो यहाँ पर इस पुरा में आने वाले नामों का ये आखिरी पर्ची इस बच्ची के जरिए से निकल रही है और यहाँ पर 16 पर्चियाँ मुकम्मल हुई। मैं एक मरतबा फिर यहाँ पर मौजूद हाज़रीन से गुजारिश करता हूँ और ये नन्हे नन्हे तलबा से गुजारिश करता हूँ, बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि 2 लाख तालियां बजाकर हमारे अरहान गोल्ड के मालिकान के हौसलों को मज़ीद गिरा बख्शें कि जिस तरह से इन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरी तकरीब को यहाँ पर 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं रखी। वहीं पर अपने मौजूद ग्राहकों की खिदमत में बेशकीमती तहफ़्फ़ुज़ पेश करने में भी इनका कोई शामिल नहीं है और अभी तक के मालेगांव शहर में ये सोने का जो कारोबार है पंच रखते रहो। ये 16 पर्चियाँ आप लोगों के सामने यहाँ पर निकाली गई थी जो कि मेरे हाथ में मौजूद है और मैं यहाँ पर अपने आप को भी जो है खुशी समझ रहा हूँ कि बच्चों के जरिए से निकाली गई जो पिनअप की हुई पर्ची है उसे मैं आपके सामने खोल रहा हूँ
खोल कर उस नाम का ऐलान करने की ये कूपन नंबर ऊपर है। कूपन नंबर सभी लोग ध्यान से सुने, 4222 मतलब 4222 4222 ये इस कूपन का नंबर है। और नाम का अगर बोले तो ऐलान कर दूं, नाम जो है वो शफीक शाह, गुलशने मालिक, मालेगांव। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है और अगर मौजूद है वो शख्स या उनके घर की कोई मोहतरमा यहाँ पर मौजूद है अपने कूपन के साथ, तो वो यहाँ पर जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ ले आए ताकि उन्हें इनाम से नवाजा जा सके। इस कुरान में जो पहला नाम यहाँ पर आया है वो है 4222 नंबर का कूपन है और शफीक शाह ये नाम है, गुलशने मालिक, मालेगांव। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इन्हें बाद में मधु करके शॉप पर से जो हमारा शोरूम है अरहान गोल्ड का, वहां से उनको ये इनाम तफवीज़ किया जाएगा। अब दूसरे कूपन नंबर का यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है 1381 1381 कूपन नंबर है 1381। नाम है सौदा सुहेल अहमद, इस्लामपुरा, मालेगांव। अगर मेरी आवाज इन तक पहुंच रही है, किसी खातून का नाम है सौदा सुहेल अहमद 1381 ये नंबर का कूपन है, इस्लामपुरा, मालेगांव। ये भी अगर नहीं है और अगर इनको कोई जान रहा है तो उन तक खबर पहुंचा दे ताकि वो हमारे अरहान गोल्ड के शोरूम से इसको हासिल कर सके। और ये लिस्ट जो है वो शामनामा अखबार में भी शाये की जाएगी, तो वहां से भी अपने नामों को आप तलाश कर सकेंगे। तीसरी पर्ची है 3504 3504 ये कूपन नंबर है और नाम है रेहाना अब्दुल गफ्फार, बेलबाग, मालेगांव। रेहाना अब्दुल गफ्फार, बेलबाग, मालेगांव। शायद ये भी यहाँ पर इस वक्त हाजिर नहीं है। शोमियत किस्मत कहिए कि मालेगांव शहर में शादियों का सीजन जारी है और बेपनाह मसरूफियात, छुट्टी होने के बावजूद जो है मसरूफियात हैं, इसलिए हमारे जो मुअज़्ज़ज़ गाहक हैं और भाई फाहान हैं वो शायद ना आ सके हों। आइए चौथे नंबर के कूपन का मैं ऐलान कर रहा हूँ 1387 कूपन नंबर है 1387। नाम है हसन खान, गुलाब पार्क, मालेगांव। ये गुलाब पार्क यहाँ से करीब में ही है और शायद ये मौसूफ भी यहाँ पर हाजिर नहीं है। हसन खान, गुलाब पार्क, मालेगांव। बहरहाल इनके कांटेक्ट नंबर भी इसमें दर्ज हैं, जिम्मेदारान जो है उनको कांटेक्ट भी करेंगे और उसके अलावा अखबार में जो है इनके नामों को शाये भी किया जाएगा कि ये वो खुश नसीब हजरात हैं जिनका नंबर कुरानदाजी में यहाँ पर आया है। आइए अगले नंबर की तरफ। अगला कूपन नंबर है 6116 6116 ये कूपन नंबर है और नाम है फैजान खान, सिकंदर नगर, मनमाड़। ये देखिए हमारे करीबी शहर मनमाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ गाहक फैजान खान का यहाँ नाम जो है यहाँ पर इस कुरानदाजी में आया है। मनमाड़ शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद वो इस मजमे में मौजूद ना हो। बहरहाल जिम्मेदारान से गुजारिश है कि उन तक भी इसकी इत्तला दी जाए। अगला नंबर है 1943 1943 ये कूपन नंबर है। नाम है इरफाना वसीम शाह,
जामतुस्सालिहात मालेगांव, पता है जामतुस्सालिहात मालेगांव। इरफाना वसीम शाह, कूपन नंबर 1943। इनके भी नाम को हम अखबार में देंगे और उन तक इत्तला पहुंचाई जाएगी। अगला नंबर है 3259 3259। नाम है मोमिन इम्तियाज अहमद मोहम्मद अय्यूब, नयापुरा मालेगांव। मोमिन इम्तियाज अहमद मोहम्मद अय्यूब, नयापुरा मालेगांव। कूपन नंबर है 3259। है बेटा आपके पास? अब्बू हैं, यहां मौजूद हैं? अगर मेरी आवाज पीछे हाथ दिखाई दे रहा है, आप आ सकते हैं स्टेज पर, आने की जहमत गवारा करें। कूपन लेकर आए मोमिन इम्तियाज अहमद मोहम्मद अय्यूब साहब। 3259 ये कूपन नंबर है। पीछे से किसी साहब ने हमें हाथ दिया, हमें हाथ दिखाई दिया। अब वो कब तक स्टेज पर आते हैं? आ रहे हैं, बल्कि वो बच्ची को आगे भेज रहे हैं। सिद्दीकी टी वाले हजरत नजर आ रहे हैं, वो आ जाए, आपकी स्टेज पर आ जाए। देखिए आपकी फर्म का नाम तो मैंने ले ही लिया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन मोहतरम के लिए कि देखिए किस्मत का ताला खुला और ये मौजूद हैं। उनकी बच्ची गालवन यहाँ स्टेज पर आई है। कूपन चेक किया जा रहा है, क्या नंबर वही है? बत्तीस 59 नंबर का ये कूपन है जो इस पूरा अंदाजे में यहाँ पर निकला है। और यहाँ पर हमारे जिम्मेदारान को, हमारे सदर साहब को ये कूपन दिखाया जा रहा है कि देखिए हकीकत पर मबनी है और हमारे खुशनसीब मोहतरम सिद्दीकी टी वाले साहब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्टर अहमद रियाज साहब और सदर मौसूफ दोनों साहबान से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो कूपन जहाँ पर मैच हुआ और 5 ग्राम का जो सोने का सिक्का यहाँ सेंटर में खड़ा हो, यहाँ पर आगे की जानिब तशरीफ ले आए। 19-20 मई को ये आप हाथ लगाकर कूपन अपना ये सोने का सिक्का जो है वो हासिल करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इस तरह से देखिए किस्मत है, जब भी किस्मत साथ देती है तो इसी तरह से इनामात की बारिश होती है। जिन लोगों को ये सिक्का तफवीज़ किया जा रहा है, जिनका नंबर आ रहा है, उनके घर वालों से, उनसे जिम्मेदारान से गुजारिश है कि वो दूसरे ही रोज जाकर शोरूम से उसका बिल बनवा ले ताकि आपका सोने का सिक्का जो है वो आपका हो जाए। आइए अगले कुरा की तरफ हम बढ़ते हैं। कूपन नंबर है 6059 6059। नाम है शाहीन शेख। ये भी सिकंदर नगर मनमाड़ का है। अच्छा, उससे पहले जो है वो इरफाना वसीम शाह था। हाँ, बहुत फर्क है। नहीं, ये मालेगांव है ना, मनमाड़। हाँ, ये अलग है। वो 6116 था और ये 6059 है। कूपन नंबर 6059
सिकंदर नगर मनमाड़ से ताल्लुक़ रखता है, गालबन यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। अगला कूपन है 3995 3995। नाम है हाजी उस्मान खान इब्राहिम खान, गुलशन मालिक मालेगांव। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, अगर उस घर से, उस खानदान से कोई फर्द मौजूद है तो वो आ सकता है। हाजी उस्मान खान इब्राहिम खान। अगला कूपन है 4914 4914। नाम है साजिद अली खान, गुलशेर नगर मालेगांव। साजिद अली खान, गुलशेर नगर मालेगांव 4914 ये कूपन नंबर है। ये भी साहब शायद यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए अगले कूपन की जानिब बढ़ते हैं और अगला कूपन है 4058 4058। नाम है कामली मोहम्मद गौस, इस्लामपुरा मालेगांव। मैं इन हजरत को जानता हूं, लेकिन अगर उनके घर से कोई है और कूपन लाया है तो वो यहाँ तशरीफ ले आए। इस्लामपुरा कामली मोहम्मद गौस। हाँ, ये ताहिर उनका साहबजादा यहाँ तशरीफ ला रहा है। आइए ऊपर आ जाएं, कूपन लेकर आए। ये कूपन चेक कर लें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पर ये इनकी किस्मत का ताला खुला और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में मिस्टर अनीस अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मिस्टर रिजवान अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और बड़े ही पुरवकार अंदाज में यहाँ पर ये सोने का सिक्का यहाँ पर कोरा में निकलने वाली पर्ची के हकदार को दिया जा रहा है। कामली मोहम्मद तैयब यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने ये सोने के सिक्के पर भी हाथ लगाएं और उसे हासिल करें और कल के रोज शोरूम में जाकर आप इसका बिल बनवा लें। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की जाती है तमाम इनाम याफ्तागान को। अरहान गोल्ड मालकान की जानिब से, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की जानिब से और हाज़रीन की जानिब से मुबारकबाद पेश की जाती है। अगली पर्ची जो है वो देखते हैं कूपन नंबर क्या है। 6208 6208 ये कूपन नंबर है। नाम है शेख तालिब शेख सादिक, शेख तालिब शेख सादिक। एक खातून यहाँ पर खड़ी हुई आप नहीं नाम लेने के फौरन बाद जो है वो खड़ी हुई तो मुझे लगा कि खैर ये 6208 हजार खोली मालेगांव, शेख तालिब शेख सादिक, हजार खोली मालेगांव। शायद ये भी यहाँ पर नहीं आ सके हैं। आइए हम अगले कूपन की जानिब पढ़ते हैं। 5002 कूपन नंबर है 5002। नाम है जाहिद अहमद, इस्लामपुरा मालेगांव। जाहिद अहमद, इस्लामपुरा मालेगांव। चेक कर रहे हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टेज पर मौजूद हैं। शायद जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबा मैडम जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने तकरीर भी की और देखिए किस्मत का ताला इस तरह से खुला कि 5 ग्राम सोने का सिक्का जो है वो हासिल कर रही हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ना सिर्फ सबा मैडम को, उनके वालिद गिरामी मोहम्मद रज़ा सर को भी और पूरे खानवादे को। मैं दोनों मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को भी
میں چاہوں گا کہ وہ آگے کی جانب تشریف لے آئیں اور ہمارے دونوں برادران جو ہیں وہ بھی آگے کی جانب تشریف لے آئیں. آئیے ذکیہ میڈم، شہناز میڈم، آپ حالانکہ تینوں جو ہے ہمارے معزز مہمان ہیں اور یہاں پر قسمت کا تالا جو ہے وہ صبا میڈم کا کھلتا ہے. بہرحال جس طرح سے یہاں پر انعامات کا سلسلہ دراز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری تو دعوت ہر جگہ پکی ہو رہی ہے. ہمیں صبا میڈم کی طرف سے تو رہے گی. لیجیے ہاتھ لگائیں اور کل کے روز جا کر شو روم سے آپ اس کا بل بنوا لیں. یقیناً ایک یادگار لمحہ آپ لوگوں نے یہاں پر جیا ہے اور اس طرح سے قسمت کا تالا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی قسمت اس طرح سے کھلتی رہے. آئیے اگلے کوپن کی جانب ہم بڑھتے ہیں. اگلا کوپن ہے 1254 1254 مجیب شیخ، شیواجی چوک، نانگاؤں. کیا بات ہے، واہ! نہ صرف مالیگاؤں شہر، نہ صرف مالیگاؤں کے قلب میں موجود اسلام پورا نیا پورا، بلکہ مضافات میں موجود گلشیر نگر اور دیگر علاقوں کے نام کے ساتھ منماڑ کے دو نام یہاں پر آئے اور ایک نام جو ہے وہ نانگاؤں کا آ رہا ہے. یعنی آپ شفافیت کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے یہاں پر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. کوپن نمبر ہے 1254، نام ہے مجیب شیخ، شیواجی چوک، نانگاؤں. اگلا کوپن نمبر ہے 5297 5297 انصاری نہال احمد، گولڈن نگر، مالیگاؤں. اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور آپ اگر کوپن رکھتے ہیں، کوپن نمبر ہے 5297 انصاری نہال احمد، گولڈن نگر، مالیگاؤں. خیر فون نمبر یہاں پر درج ہے. اور یہ آخری کوپن جس کا اعلان میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے. 2206 2206 ماریا سہیل شیخ، گوتم پبلک اسکول، احمد نگر. زوردار تالیاں ہونی چاہیے. دیکھیے احمد نگر کہاں سے لوگ جو ہے ارحان گولڈ پر بھروسہ کر کے آپ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور انہیں طاقت سے نواز رہے ہیں. آپ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، میں سمجھا احمد نگر سے آئے ہیں. بہرحال یہ 2206 کوپن نمبر ہے، گوتم پبلک اسکول، احمد نگر. اس طرح سے یہاں پر یہ جو 16 خوش نصیب لوگوں کے نام کا اعلان کرنے کا موقع ملا اور یہاں پر اس تقریب کو ہم اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں، بلکہ ملتوی کرتے ہیں. مختار عادل صاحب نے کیا بات کہی ہے کہ یہ ملتوی ہوگا اور آئندہ سال اس سے بڑا جو ہے پروگرام یہاں پر منعقد کیا جائے گا اور اس میں ضرور آپ لوگ ضرور شرکت کریں اور ارحان گولڈ سے اپنے رشتے کو استوار رکھیں اور گاہے آپ سونے کی خریدی کرتے رہیں. اور ان کی جو اسکیم ہے، ان کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی صاف و شفاف ہوتے ہیں. آپ کے سامنے یہ تمام پورا پروگرام یہاں پر ارینج کیا گیا، منعقد کیا گیا. میں ارحان گولڈ کے مالکان محترم شیخ رضوان صاحب، محترم شیخ انیس صاحب اور ان کے تمام اسٹاف ممبران کی جانب سے، ان کے تمام جو ذمہ داران ہیں جو شو روم پر اپنی خدمات پر مامور ہیں، ان تمام کی جانب سے آئے ہوئے معزز مہمانان کا اور سامعین کا، حاضرین کا، معزز خواتین کا، مرد حضرات کا اور بالخصوص ان 16 بچوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. یہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے ہم تک پیش کر، وہ جو نعت پیش کرنے والے حضرت ہیں عمران بھائی. میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے، عمران بھائی
नात आपने पेश की थी, यहाँ पर एक हम्द पेश की गई। किरत तो शायद मैंने कर ली थी। हाँ, हम्द इनाया अनम और नात जो है वो जकिया मैडम और इमरान भाई, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, इमरान भाई स्टेज की तरफ वापस आ जाएं। आपको तोहफा देना चाह रहे हैं अरहान गोल्ड के। हाँ, ये इमरान भाई भी मौजूद हैं। 10 ग्राम का चांदी का सिक्का है जो कि इस नात पेश करने वाले इमरान भाई की खिदमत में पेश किया जा रहा है। यहाँ पर अनीस भाई भी मौजूद है, रिजवान भाई भी मौजूद है। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम आप लोग भी आगे की जानिब तशरीफ ले आएँ और ये जो नात पेश करने वाले इमरान भाई की खिदमत में चांदी का सिक्का तफवीज़ किया गया, इनाया अनम से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे तशरीफ ले आए और हम पेश करने वाली ये नन्ही बच्ची, उसे भी यहाँ पर इनाम से नवाजा जा रहा है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को यहाँ पर हम मदऊ कर रहे हैं कि वो इन बच्चों की और इस तरह से स्टेज पर परफॉर्म करने वालों की जो है इज्जत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें। ये इनाया अनम को चांदी का सिक्का तफवीज़ किया जा रहा है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अरहान गोल्ड के मालिकान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जकिया मैडम यहाँ पर मौजूद है। आपने बड़ी पुरसोज आवाज़ में नाते नबी यहाँ पर गुनगुनाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़राए किराम आगे की जानिब तशरीफ ले आएँ। शहनाज मैडम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी उनका मैडम का साथ देने के लिए आ जाएं। सबा मैडम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी आ जाएं। और इस तरह से ये जो चांदी का वाइन है, जो सिक्का है, जो तोहफ़तन दिया जा रहा है अरहान गोल्ड के जिम्मेदारानी की जानिब से, वो यहाँ पर हासिल करें। बहुत शुक्रिया। ये असल में उसी दरमियान में किया जाने वाला था, लेकिन किसी वजह से ये सहव हो गया और सामीन के जाने के बाद हम आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। और वैसे तो शुक्रिया अदा किया जा चुका है, लेकिन आखिर में यहाँ पर रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के साथ रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया और सदर साहब की इजाज़त से प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है।